नमस्कार, मेरा नाम है अनुपम खेर और आप मुझे देख रहे हैं फिल्मी बीट पर। Namaste, I'm Yagya Bhasin and you are watching us on Filmy Beat. Hi, this is Megha Chilaka. You're watching us on Filmy Beat. I always wanted to be part of a fantasy film made in India with international standards. When it comes to theatre, so there's nothing made, by an Indian company for the kids. So why don't we make something for our own, kids and something from the homegrown background? So when you call a homegrown Desi hero, one name will come, that is Chota Bheem. अनुपम सर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा था. I'm a Hindi medium guy, and for a Hindi medium guy to do so many films abroad and series, etc., apart from my hard work and with whatever honesty that I have, it's also God's blessings and the people's love that has made me do that. Children do not have that innocence which they had when I did that 25 years back. अब बच्चे जो हैं वो मेरे से सवाल पूछ सकते हैं. तब मुझे लगता था कि उनको उनमें there is a sense of wonder, there is a sense of innocence. I'm not saying that they are not innocent, but they are too sharp. But I would love to do it and do a show on gadgets with them. हाय गाइस, वेलकम टू फिल्मी बीट. दिस इज़ मुर्तज़ा इकबाल और आज मेरे साथ है एक ऐसी फिल्म की स्टारकास्ट जो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप बच्चे हैं तो ऑफकोर्स आपको ये पिक्चर एक्साइट करेगी ही, बट अगर आप बड़े भी हैं तो आपके अंदर का शायद से बच्चा जगा देगी ये फिल्म. वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन द टीम ऑफ छोटा भीम एंड द कर्स ऑफ दामयान हु इज हियर विद अस टुडे. ऑफकोर्स इनको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है. वी हैव अनुपम सर, यज्ञ एंड मेघा मैम. हेलो, हाउ आर यू? वेलकम टू फिल्मी बीट. Thank you, Murtaza. Thank you, nice to talk to you. I like your shoes, man. थैंक यू सर. Wow. सर, बट आपका आई थिंक हम लोग को शर्म आ जाएगी आप कितने फैशनेबल हो. अरे क्या बात है. सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही शुरुआत करना चाहूँगा आपसे दैट व्हाट मेड यू से येस टू दिस मूवी. क्या था इसके स्क्रिप्ट में या रोल में दैट यू थॉट कि ओके. It was a first time director. राजीव की पहली फिल्म थी. I like to work with first time directors. Subject children's film, मतलब children film with lot of children in it, but it, as you said rightly, बड़े लोगों के लिए है, उनके अंदर का बच्चा जगाएगी. और I always wanted to be part of a fantasy film made in India with international standards. So there were so many reasons to be doing this film. देखिए, आपसे जानना चाहूँगा छोटा भीम का कैरेक्टर आप लीड रोल टाइटुलर रोल प्ले कर रहे हैं. क्या प्रेप था? क्या आपने वो कार्टून कैरेक्टर को देखा था क्योंकि ऐसा होता है छोटा भीम? किस तरीके से आपने प्रेप किया था इस रोल के लिए? मैं छोटा भीम तो मैं पहले से ही देखता आ रहा था, तो बस मैम ने वो फिल्म भेजी थी, फिर वो एनिमेटेड वर्जन, तो बस मैंने उसे ही 2-3 बार देखा था और छोटा भीम के एपिसोड बार बार देखे थे बहुत सारे, जिससे मुझे एक रिविजन मिल जाए कि छोटा भीम का कैसा बिहेवियर है. बस नो, यू आर नॉट जस्ट एन एक्ट्रेस बट ऑल्सो द को प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म. तो शुरुआत कैसे हुई कि कब सोचा क्योंकि इसको एक बड़े पर्दे के लिए बनाने की ज़रूरत है, वो भी ऐसी लाइव एक्शन जिसको हम कहते हैं वैसे टाइप. So जैसा कि आपको पता है कि Bheem is loved by all the kids and everybody in the country, and thanks to all the audience इतना प्यार देने के लिए. But just like Rajiv was mentioning some time back, he's the director of the movie, कि animation में तो चल रहा है, अच्छा है, लोग देख रहे हैं. But when it comes to theatre, so there is nothing made by an Indian company for the kids. So why don't we make something for our own kids and something from the homegrown background? So when you call a homegrown Desi hero, one name will come, that is Chota Bheem. So that was the only logic and thought behind कि चलो छोटे भीम को अभी बड़े पर्दे पे रियल बच्चों के साथ लेके आते हैं, because somewhere animated movies have a limited audience और reach out कि ठीक है टीवी पे आ जाएगी देख लेना, अभी तो आई जाएगी कार्टून चैनल पे देख लेना. तो एक बड़ा विजन देने के लिए and hopefully we'll be able to change the mindset of Indian audience and again the makers around the country कि बच्चों के लिए और मूवी बनाई जाए. करेक्ट. ये मेरा क्वेश्चन आपसे और अनुपम सर से है कि ये जो हम पहले ना एक ऐसा टाइम था जैसे मैं जब बचपन में था कि एवरी समर ना एटलीस्ट एक मूवी तो आती थी, चाहे छोटा चेतन हो जाए जंतरा ममता, जो बच्चों को अट्रैक्ट करती थी. वो बहुत टाइम से बंद हो गया है. डू यू थिंक कि ये ट्रेंड है जो वापस शुरू होना चाहिए टू एटलीस्ट लाइक कि बच्चे माँ बाप भी बच्चों को लेके आए? बिकॉज आई रिमेंबर
हमें भी हमारे पेरेंट्स लेके जाते थे क्योंकि समर वैकेशन होता था तो उसमें एक ऐसी किड्स मूवी आनी चाहिए, पर वो बंद हो गया ट्रेंड. डू यू थिंक ये ट्रेंड अभी और ज़्यादा होना चाहिए? ऑफ कोर्स छोटा भीम इज तो कमिंग दिस समर ओनली. वी रियली होप कि हमारी मूवी के बाद ये ट्रेंड चेंज हो जाए, बट जस्ट लाइक वी वर डिस्कसिंग कि एक क्राइम मूवी हिट होती है, देन वी हैव एक लाइन लग जाती है, सब बैक टू बैक क्राइम को ट्राई करते हैं, एंड एक पॉलिटिकल मूवी अगर हिट होती है तो सब किसी ना किसी पॉलिटिकल लीडर को उठा के मूवी बनाते हैं. सो वी आर रियली होपिंग कि हाँ ये एक बच्चों की मूवी फैमिली एंटरटेनर हिट हो और बस लाइन लग जाए, सब बनाए. बट या इट्स रियली नीडेड कि हम बच्चों के लिए कुछ बनाए एंड इट्स हैज़ टू बी अ फैमिली धमाका मूवी. स्ट्रेटेजाइज भी करना चाहिए हमको. आई थिंक बच्चों ने फॉरेन प्रोडक्ट्स देखने शुरू कर दिए सिनेमा हॉल में. स्पाइडरमैन, सुपरमैन. यूएस इज़ वेरी गुड एट मार्केटिंग प्रोडक्ट्स. वी नीड टू लर्न हाउ टू मार्केट दीज प्रोडक्ट्स. हमारे पास तो पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, हमारे पास चंदा मामा में कितनी कहानियाँ थी मुझे याद है. हमारे पास लोटपोट होता था, हाँ जी, है ना. तो ये सब चीज़ों की इतनी सारी चीज़ें बन सकती थी. बट एज मेघा सेड वेरी राइटली दैट हो सकता है कि somebody has to take an initiative, but for it to become a trend, the audiences have to make it into a success. Correct. Because only when it becomes a successful franchisee, then it will sort of, other people will sort of say, okay, we can. Because there is a huge audience of children who can make, who will want to go to a film like this. उनके माँ बाप को भी बहुत उनको बोलना चाहिए. बिकॉज प्रॉब्लम पता क्या है कि the parents are so what you call, have a complex about promoting English superheroes. Yes. Or they will rather, because they are feeling they need to be happening among their friends, that what did you do? Oh, I went to take my children to Disneyland, and I went there and I went this side, and then showed them Spider-Man or this other film or Matilda. But कहाँ जाए छोटा भीम देखने का, तो उनको लगता है कि हम बच्चे तो जाना चाहते हैं. पेरेंट्स नीड टू नो, बिकॉज दे आर स्टोरीज ऑफ, दे नीड टू नो अबाउट इंडिया, दे नीड टू नो अबाउट इंडियन फैंटेसी स्टोरीज, दे नीड टू नो अबाउट कैरेक्टर्स फ्रॉम originate from our country. I think that's very important. सो ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि आपने पहले बच्चों के साथ काम नहीं किया. आई थिंक सीना समथिंग टू अनुपम अंकल इज़ माय फेवरेट शो. मेरा तो सपना था कि मैं उसमें आऊँ, पर मैं आ नहीं पाया, तो मैं सर का इंटरव्यू करने आ गया हूँ. बट एक जब ऐसी मूवी करते हैं जहाँ पे इतने सारे बच्चे होते हैं, तो क्या उनके साथ शूट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है? बिकॉज किड्स ऑल्सो हैव देयर ओन मूड्स एंड एवरीथिंग. डिफिकल्ट नहीं होता, यू हैव टू बी अलर्ट. बिकॉज एक बड़े फेमस डायरेक्टर ने कहा था कि व्हेन चिल्ड्रन आर इन द फ्रेम नोबडी इज लुकिंग एट यू. सो because they are very spontaneous, they are very real, they are very, no, they don't get manipulated, they don't do manipulated acting also. Baki, I get very entertained with them, and they were very entertaining children. They were bright, entertaining, sometimes noisy, but very, 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 very talented children. ये कि आपका कैसा था एक्सपीरियंस अनुपम सर के साथ काम करने का? कुछ बताइए हमें. अनुपम सर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा था. एंड फर्स्ट टाइम जो अनुपम सर आए थे तो सभी बहुत ज़्यादा इंटिमिडेटेड से फील कर रहे थे थोड़ा, एंड आई वाज आल्सो रियली नर्वस. बट जब सर आए और सीन्स शूट हुए सो थोड़ा नॉर्मलाइज हो गया, और वो सर बिल्कुल हमारी तरह ही बच्चे बनकर रहते थे, हमारे साथ गेम्स खेलते थे, और वो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता था हमें उनसे. सो इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. Right. So of course, just recently you completed 40 years in the industry. Congratulations for that. I want to know कि जब शुरुआत की होगी इतने साल पहले, तो कहीं था कि इतनी लंबी जर्नी हो जाएगी मेरी? I'm an eternal optimist. For me, the ultimate definition of optimism is nothing is all wrong. Even a clock that has stopped running is correct twice a day. तो हाँ, ये नहीं सोचा था कि 40 साल 50 साल, बिकॉज ज़िंदगी जैसे जैसे गुजरती है, I neither think on the past and nor I think on the future. Yes, I want things to, I enjoy the present, but I'm thankful to God, I'm thankful to the industry that they have given me so much love, not only in India but abroad also. I've been able to work. I'm a Hindi medium guy, and for a Hindi medium guy to do so many films abroad and series, etc., apart from my hard work and with whatever honesty that I have, it's also God's blessings and the people's love that has made me do that. Correct, sir. So I would like to know कि
40 ईयर्स में आपने इतने सारे किरदार प्ले किए होंगे, अगर आपको मौका मिले कि जाके ये किरदार मैं वापस प्ले कर सकूँ तो वो कौन सा होगा? कोई एक किरदार अगर हो तो, जो आपने सबसे ज़्यादा इन्जॉय किया था मे बी शूटिंग के दौरान, या जब आप अभी भी देखते हो तो लगता है कि ये कैरेक्टर मेरा बहुत अच्छा था? मैंने ना प्रोसेस ऑफ वर्क हमेशा एंजॉय किया है। उसका एंड रिजल्ट बेशक कुछ कमाल का ना रहा हो, बिकॉज मैं भी पहले भी कह रहा था कि लाइफ इज़ 90% मोनोटनी, 10% एक्साइटमेंट। हम घर पे खाना हफ्ते में से 5 दिन सेम खाते हैं ना, दाल रोटी भिंडी सब्जी व्हाटएवर, एंड देन फिर एक दिन माँ कहती कि आज मैं आपके लिए बिरयानी बनाने वाली हूँ या कुछ स्पेशल बनाने वाली। सिमिलरली वर्क को लेकर जो रोल जो किरदार मैंने जिस वक्त किए थे मैंने उस समय एंजॉय किए थे। बट अब मैं जो किरदार करने वाला हूँ, अभी मेरी एक फ़िल्म सितंबर में आएगी सिग्नेचर, फिर यशराज की एक फ़िल्म है विजय 69। आई थिंक दे आर वेरी फैसिनेटिंग फिल्म्स एंड आई एम वेरी, और उसके बाद जो मैं फिल्में करने वाला हूँ, जो स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ, दे आर अमेजिंग फिल्म्स। सो rather than going back to and doing something which I've already done, I'll do something which I have not done as yet. करेक्ट। मुझे आपसे जानना होगा, क्या अनुपम सर को ऑन बोर्ड लाना इजी था, डिफ़िकल्ट था उनको कन्विंस करना कि सर ये फिल्म कीजिए? सी ऑनेस्टली हम सब बहुत नर्वस और डरे हुए थे कि सर इज़ वेरी बिजी, ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स आवर कंट्री हैज़ एवर सीन, यू नो, एंड वी डिडंट नो कि हाउ विल ही रिएक्ट, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स छोटा भीम बच्चों की मूवी है एंड ही इज़ प्लेइंग द गुरु, द गाइड ऑफ भीम. So we were little, apprehensive, but again the director approached sir, thoda briefing hua. He was also scared, but we are really honored and obliged that sir has joined this project and guided us through. No, I've really enjoyed the whole process. I've enjoyed people. इन्होंने बस मुझे अपने घर पे खाने पे नहीं बुलाया, उसका मुझे हमेशा रंज रहा। वो हम अगली बार करेंगे, बिकॉज सर शूटिंग पे ही बिजी रहते हैं सर आप। नहीं, मैंने खुद भी बोला 2-3 बार इनको बोला कि आपने मुझे खाने पे नहीं बुलाया, नहीं बुलाया, वो तो शिकायत है ही, बट ठीक वो दूर करेंगे, जल्दी दूर करेंगे। सो ये मेरा थोड़ा पर्सनल वाला सवाल है, क्या कभी आपने सोचा है कि अ शो लाइक सेना समथिंग टू अनुपम अंकल शुड कम बैक? 100%. और आपने कभी सोचा है लाइक प्लान? But the problem with now bringing it back is that children do not have that innocence which they had when I did that 25 years back. अब बच्चे जो हैं वो मेरे से सवाल पूछ सकते हैं, तब मुझे लगता था कि उनको उनमें there is a sense of wonder, there is a sense of innocence. I'm not saying that they are not innocent, but they are too sharp, they are too aware of things, they are too busy in promoting how smart they are. उनको लगता है कि नॉर्मल सा आंसर दे दिया, तब तो पहले आधे से ज़्यादा घंटा तो लग जाता था। वो आप तो आधे घंटे का शो देखते थे, पर आधे घंटे शो की शूटिंग हम 3 घंटे करते थे, बिकॉज जवाब ही नहीं देते थे। फिर जब कोई एक आधी बात अच्छी सी निकलती थी, बट आई वुड लव टू डू इट एंड डू ए शो ऑन गैजेट्स विद देम, do a show and on various things that and learn from them, but it will be very interesting, but it will be different. That show had the basics of innocence, this will be a basic of information. Correct. So I think all the best for Chhota Bheem, and I am really excited for the film, and I hope कि पेरेंट्स भी, I'm telling everyone there कि पेरेंट्स भी जाइए, बच्चों को दिखाइए मूवी, बिकॉज एज मैंने कहा मुझे खुद को कभी कभी लगता है कि वो बच्चों वाली फिल्म आती नहीं है, बहुत बहुत रेयरली आती है। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म। थैंक Great. यू। Thank you, brother. Thank you.